Dignitaries, brothers and sisters, we welcome you all once again to this International Yoga Program. Today we are very delighted to have Dr. Sachin Bhai with us to this pleasant morning. We all extend a very warm welcome to you, sir, in Ludhiana and to this yoga program. Dr. Sachin is a well-known medical practitioner, intensivist. He is a dedicated Raj Yogi too since last 30 years. Where we all and all beginners are very much familiar with his medical expertise, teachings of Raj Yoga and many more of his special qualities. But for new brothers and sisters, I would like to share some of his, brief biodata over here. Born in 1979, Dr. Sachin is presently serving as consultant physician and intensivist at J. Vatumal Global Hospital and Research Center, Mount Abu since 2010. Dr. Sachin has been a meritorious scholar. He has completed his MBBS with gold medal from Yavatmal, Maharashtra, and MD in Internal Medicine from Mumbai, as well as MD in Alternative Medicine from Kolkata. Dr. Sachin has successfully completed Indo-Australian Critical Care Fellowship Program, Fellow of Intensive Care Medicine, Fundamental Critical Care Support Course, Fellowship in Dialysis and Diploma in Public Health, and many more prestigious degrees from various reputed organizations from India and abroad. He has a vast experience in critical care, attended a number of international and national medical conferences, and has won first prizes in different medical quizzes. Dr. Sachin is a life member of Indian Society of Critical Care Medicine and Critical Care Education Foundation. Apart from these societies, he is a very active member of medical wing of Raj Yoga Education and Research Foundation, Brahma Kumari's World Spiritual University, Mount Abu. As a physician leader in his specialty, Dr. Sachin has extended his extraordinary at many prestigious hospitals in our country. Some of them are BSCC MG Hospital, Mumbai, Hinduja Hospital, Mumbai, Apollo Hospital, Bangalore, Phenomenal Hospital, Latur, and many more. He has also been actively involved in clinical research and been a faculty for MBBS and nursing program for about 10 years. Dr. Sachin has also organized many seminars and conferences on clinical and preventive medicine, mind and body. He has also organized programs like tobacco and alcohol de-addictions and many more such programs for happy and healthy living. Presently, Dr. Sachin is serving at J. Vatumal Global Hospital and Research Center, Mount Abu, in the capacity of Head of the Department of Medicine. He is a full-time consultant and physician and intensivist and actively involved at Global Hospital in managing various serious critical patients in ICU, managing kidney failure patients on hemodialysis, giving chemotherapy for cancer patients, and many more. List is very huge. This shows that he is, continuously working day and night for the cause of humanity. Apart from his extraordinary contribution to the medical field, he is a regular faculty for the various Brahma Kumaris program and enthusiastically delivering the lectures on healthy mind and body. Besides this, he is also helping us in understanding the Raj Yoga teachings of Brahma Kumaris through TV programs, and Nayi Soch Naya Vishwas is one of such programs of Peace of Mind TV channel, which has changed the millions of viewers from difficult state to the positive healthy being. Dr. Sachin is also a good writer. He has composed about 100 of English poem and prose, and Dr. Sachin is regularly practicing Raj Yoga meditation since last 13 years and consistently making efforts for evolving new techniques for making our life happy and healthy. For such a great medico-spiritual personality, I think certainly all of us would love to extend a happy gesture by a huge round of applause for Dr. Bhata. Brief introduction and blessings of Paramita Paramatma Shiv Baba. I would like to invite Dr. Sachin to kindly deliver his lecture on Raj Yoga to strengthen mind and intellect. Thank you.
आज की यह स्वर्णिम सुबह, इतना सुंदर योग का वातावरण, और हम सब यहाँ आज बैठे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग की चर्चा करने, योग का जीवन में अनुभव करने, और साथ ही साथ आज का यह दिन 18 जून 2017 इस मास का तीसरा रविवार फादर्स डे भी है। तो आज हम सबके लिए डबल खुशी का दिन है। इस सत्र की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। एक बहुत बड़ा व्यापारी था कभी, जो कि जहाज की यात्रा करता था, एक देश से दूसरे देश। इस तरह एक बार यात्रा करते समय उसके जहाज का इंजन खराब हो जाता है। उसकी जहाज में बहुत सारे कारीगर होते हैं, मैकेनिक होते हैं। वो बहुत प्रयत्न करते हैं उस जहाज के इंजन को ठीक करने का, परंतु कर नहीं पाते हैं। वो व्यापारी बहुत परेशान हो जाता है, अब क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, जहाज तो चल ही नहीं रहा है। तो देखता है कि एक वृद्ध सा मैकेनिक वहां से गुजर रहा है। वो व्यापारी उस मैकेनिक से विनती करता है कि क्या आप इस इंजन को ठीक कर सकेंगे। उस व्यापारी के पास उस मैकेनिक के पास एक बहुत बड़ा झोला होता है, और वो मैकेनिक, वो वृद्ध व्यक्ति जाता है और घंटों तक इंजन को देखते रहता है। यहां से देखता है, वहां से देखता है, हर ओर से देखता है। बाकी जो मैकेनिक्स होते हैं वो हंसने लगते हैं, और व्यापारी भी बहुत परेशान हो जाता है। ये व्यक्ति कर क्या रहा है, केवल इंजन को देख रहा है और घंटों बीते जा रहे हैं। एक इंजन को देखता है, नीचे से झुकता है, ऊपर से झुकता है, हर तरह से केवल देख रहा है, कर कुछ भी नहीं रहा है। और इस तरह घंटों बीत जाने के बाद वो मैकेनिक, वो वृद्ध व्यक्ति अपने झोले से एक हथौड़ा निकालता है और इंजन के एक पुर्जे पर जोर से मारता है और इंजन चालू हो जाता है। तो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, व्यापारी भी बहुत खुश हो जाता है। परंतु एक हफ्ते के बाद वो मैकेनिक उस व्यापारी को एक बिल भेजता है 1000 रुपए का, उसके चार्जेस। तो व्यापारी इतना गुस्से में आ जाता है, एक हथौड़ा लगाने का 1000 रुपया बिल। तो वो उसको एक पत्र भेजता है और कहता है, ये जो बिल लगाया है वो किस किस बात का बिल है, कृपया समझाए। तो वो वृद्ध मैकेनिक उत्तर लिखता है, 2 रुपया हथौड़े से पुर्जे को मारने का, और 9,998 रुपया कहां पर मारना है उसका। 9,998 रुपीस किस लिए, कहां पर मारना है उसका। हम सोच रहे थे योग के विषय में कि जीवन में समस्याएं हैं, जीवन में उलझने हैं, और हम उन उलझनों को, उन समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु शायद हमें पता नहीं हथौड़ा कहां मारना है। योग वो विधि है, योग वो तरकीब है जिससे हमें ये पता चलता है कि जीवन में जो रिक्तता है। और 35 मिनट तक योगाभ्यास किया था और 84 से भी ज्यादा देशों के लोग थे। ऐसे 2 एंट्री हुई थी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। और दूसरा जो योग दिवस था, चंडीगढ़ में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, इस बार लखनऊ में भी है।
तो सारे भारत में तो क्या विश्व भर में इसको मनाया जा रहा है। योगाभ्यास किया जा रहा है, योगासन किए जा रहे हैं, जो कि हमने अभी अभी देखा कैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है, कितनी सारी बीमारियों से हमें वो मुक्त रखता है। एक और भी योग है और उसका नाम है राजयोग, जो कि स्वयं भगवान ने सिखाया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब तो आवश्यक है ही और संसार इन्हें जानता है, पर जिस योग की हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है राजयोग। एक और बात हमें याद आ रही है, ये 21 जून ही क्यों चुना गया? उसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है। 21 जून सारे वर्ष भर का सबसे लंबा दिन है, ग्रीष्म संक्रांति का दिवस है और पुराणों में कहानी है कि इसी दिन आदि योगी भगवान शिव पुराण में भी जिसकी चर्चा है और कुछ अन्य पुराणों में भी इसकी चर्चा है कि आदि योगी स्वयं भगवान शिव ने इसी दिन अपने 7 शिष्यों के ऊपर दृष्टि डाली, जो कि 7 महर्षि बने और उन 7 ऋषियों ने सारे विश्व भर में योग का प्रचार प्रसार किया। और इस कारण से ही 21 जून को यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जहां पे सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर घूमने लगता है। कहा जाता है कि इस समय योग अभ्यास करने से प्रकृति भी हमारी सहायक हो जाती है। तो ऐसा यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसमें विश्व भर योग का अभ्यास होने वाला है, और हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे राजयोग की। ये राजयोग क्या है? योग के 2 अर्थ हैं, एक तो है जोड़ना, दूसरा है अनुशासन। संस्कृत शब्द योग के 2 अर्थ होते हैं। एक है जोड़ना, जो समन्वय टूट गया है, जो योग टूट गया है इस देह का, इस आत्मा से, और इस आत्मा का परमात्मा से, वो पुनः जोड़ना, यह योग है। प्रकृति से हम कितना दूर चले गए हैं, फिर से उसी प्रकृति के साथ तारतम्य मिलाना, हार्मनी स्थापित करना, जो विस्थापित हो चुकी है, वह योग है। हम सभी जानते हैं कि हम केवल यह शरीर तो पी सकता नहीं है, परंतु इस शरीर में एक चैतन्य बिंदु है, एक चेतन सत्ता है, और वही सब कुछ कर रही है। जब तक वो सत्ता है तब तक हम हैं इस देह में। जैसे ही वो सत्ता निकल जाती है, यह देह पार्थिव मृत हो जाता है। तो योग अर्थात हम जो है, हम जैसे हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसमें स्थित होना है, और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो सुख है, प्रेम है, शांति है, आनंद है। परंतु मनुष्य की दौड़ बाह्य है, बाह्यगामी है, आंतरिक सुख शांति को वो भूल गया है। ये उसी व्यक्ति की तरह है जो जिसने कभी शराब पी ली थी, वो अपने घर में आता है, अपने घर के सामने खड़ा रहता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे अपने घर पहुंचा दो। गांव वाले आकर कहते हैं तुम तुम्हारे घर में ही हो। वो कहता है नहीं, मुझे मेरे घर में पहुंचा दो, मेरी माँ मेरी इंतजार कर रही है। उसकी माँ घर से आती है और कहती है मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। वो कहता है नहीं, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। सारा गांव उसे समझाता है कि यही तेरा घर है जहां तू खड़ा है। वो कहता है नहीं, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। एक व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी लेकर आता है, कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने घर पहुंचाता हूँ। वो उसमें बैठता है और जाता है। कहने का भाव, वो जितना उससे दूर जाएगा उतना ही अपने घर से दूर जाएगा। ये राजयोग अर्थात हम जो है, जहां है, उसमें ही स्थित हो जाना। जो हमारी आंतरिक अवस्था है, आंतरिक स्थिति सुख की है, परंतु हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, जो कि कभी नहीं मिलेगा। हर वो प्रयत्न बाहर जाने का हमें अपने आप से दूर के जाता है। तो हम अभी
1-2 मिनट के लिए सभी अलर्ट होकर बैठेंगे। जिस चेतन सत्ता की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है और जो कि इस देह में एक ज्योति की तरह विराजमान है, वह आत्मा जो भ्रुकुटी के मध्य में स्थित है, हम उसका अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। सभी बैठ जाएंगे। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान चेतना की वह किरण, ज्योति का वह बिंदु मैं हूं। समस्त चेतना को भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करेंगे। संपूर्ण शरीर शांत, शीतल, निश्चेष्ट। मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान एक तेजस्वी आत्मा हूं। अति सूक्ष्म ज्योति का कण हूं। मैं आत्मा इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली चैतन्य सत्ता।
अभ्यास को हमने अभी किया वह राजयोग है। इस राजयोग में किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। इस राजयोग को कोई भी कर सकता है, कहां भी कर सकता है। यह ऐसा दिव्य योग है, सभी योगों का जो राजा है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्र विदम उत्तमम। गीता में कहा है, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो योग सिखाता हूं जो योगों का राजा है और जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यं तद ब्रह्म निष्कलमहं न च भाति भूत संगम। मैं वह निष्कलंक आत्मा हूं, मैं वह पवित्र आत्मा हूं। उसकी स्मृति योग है। अपने निज स्वरूप में स्थित होना योग है। एक समय था जब पहली बार स्वामी विवेकानंद भारत से विदेश गए 1893 और यहां पर घोषणा की थी योग की। वही योग अब भगवान हमें सिखा रहे हैं, वही प्राचीन स्वरूप उसका बता रहे हैं। तो आज के दिन स्वयं को इस राजयोग में स्थित करना है। जो लोग इसे जानते हैं वो उसे और तन्मयता से करें। जो लोग इसे नहीं जानते हैं वो अपने निकट के सेवा केंद्र पर जाए और इसे सीखे। जैसे जैसे हम इसे सीखते जाते हैं मन शांत होने लगता है। चित्त की वृत्तियां जो है, जो पतंजलि ने कहा था, चित्त जो है वो वृत्तियां होती है, उसकी रिपल्स। स्टेप है आत्मा का परमात्मा से मिलन। कौन है वो जो इस सृष्टि का नायक है? कौन है वो जो सृष्टि करता है? चराचर जिसके अधीन है वह पिता, वह परम पिता, वह नियंता इस सृष्टि का नियन हो जाए। यह जो प्रक्रिया है, यह जो योग की विधि है, वह है राज योग। तो अभी जो अभ्यास किया हमने, सभी को आनंद आया? सभी को आनंद आया? एक हाथ से बताएंगे क्यों आनंद आया? क्योंकि हम अपने निज स्वरूप में स्थित हो गए। हमें किसी से लेना नहीं है, मांगना नहीं है, यह हमारा ही स्वरूप है। बाहर जाने से गलती हुई है, अब जाना है अंदर। राजयोग आंतरिक यात्रा है। राजयोग स्वयं के अंदर जाने की यात्रा है। समय पूरा हो रहा है और इसी शुभकामना के साथ कि शारीरिक योग के साथ, आसनों के साथ, प्राणायाम के साथ हम आत्मा जो कि भटक चुकी है, खो चुकी है, उसका भी फिर से अनुसंधान करें और उसको एक दिशा दे परमात्मा की तरफ। ओम शांति।